My name is Jenny and I welcome you all to Echo with JB. This is the second part of our second chapter, which is dual effects of transaction and types of accounts. This is the second chapter of our accountings. In the first part of second chapter of accountings, we have discussed about business transactions, economic transaction, non-economic transaction, cash credit transaction, and internal and external transaction. And we identified with some statement and we identified that if the following transactions are economic transaction or non-economic transaction. So, in the second part of this chapter, we are going to start with identification of cash and credit transaction. Cash transaction. There is an exchange. Just a second. Okay. Cash transaction. There is an exchange through cash or bank. In such transaction, the word cash is mentioned. If the word cash is not mentioned and the name of person is not mentioned, then also is treated as cash transaction. In this transaction, bank cash account is definitely affected and consequently bank cash increases or decreases. In the first part, I have discussed very well about cash transaction, but I'll discuss again it for you. What is cash transaction? When we immediately pay money after the goods, service or assets bought, it is known as cash transaction and it can be also classified under economic transaction. Credit transaction. No exchange through cash bank. There is emergence of relation of debtor and creditor. Name of the person is mentioned. The word cash bank is not mentioned. It definitely affects the account of a person. The credit transaction, the term I have already discussed in the first video of the second chapter, but I can explain again it for you. Credit transaction means when I'm not paying money immediately after the goods, service or assets bought. There is a relation of debtors and creditors, and I give the money for the goods, assets, or service bought in future. It is known as credit transaction. Yes, it definitely affects the account of a person. Now, let us see one exercise related to this. Let us describe whether transactions are cash or credit. Here some examples are given, some 15 examples of different statements are given here and we have to describe whether the transaction are cash or credit. Okay, so you can pause the video, read all the statements and you can write it in the comments what all answer you think and whether the transaction are cash or on credit. You can describe by it on your own and write it in the comments section. You can pause the video. Okay, so here are the answers of the exercise which I told you about. First, goods sold for cash. This is the first statement. Yes, it is a cash transaction. Why? Because cash increases in the account. Here reason is written cash increases. Okay. हाँ, goods sold for cash. मेरे पास जो गुड्स था वो मैंने फॉर 500 रुपीज के कैश में उसको बेच दिया. लेट्स से मेरे पास कुछ तो वायर था तो मैंने उसको 500 रुपये में बेच दिया तो मुझे उसके लिए कैश मिले तो मेरे पास क्या हुआ कैश इंक्रीज हुआ. तो ये है कैश ट्रांजेक्शन. दूसरा है गुड्स परचेज फॉर 800 रुपीज. ओके, तो ये पहले हमने गुड्स सोल्ड किए अब हमने गुड्स परचेज करे 800 रुपए के तो ये क्या हुआ हमारे पास कैश डिक्रीज हुआ और ये कैश ट्रांजेक्शन ही कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर कैश है. सिंपल मैं आपको एक चीज बात बता देता हूँ कि कैसे हमको कैश या क्रेडिट में हमको उसको क्लासीफाई करना है. कहीं पे भी अगर आपको कैश का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली दिखता है वो कैश ट्रांजेक्शन होगा. देखो यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया 500 रुपये मिल गए. अभी मैं आपको एक क्रेडिट का एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा. देखो ये थर्ड एग्जांपल है गुड्स ऑफ 900 सोल्ड टू मीना. ओके, गुड्स हमने
ये मेरे पास पेंसिल है, वो ये मेरे पास पेंसिल है, तो लेट्स समझो कि ये पेंसिल मेरी 900 रुपए की है। तो ये 900 रुपए की पेंसिल मैंने उसको बेची, पर नो कैश वर्ड एंड सोल्ड टू नीना। गुड्स ऑफ 900, ये पेंसिल 900 रुपए की है, मैंने उसको सोल्ड के दी, बेच दी, पर कैश से नहीं बेची, वो यहाँ पे नहीं लिखा है स्टेटमेंट में, कहीं पे भी कैश वर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा सिंपल। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नो कैश वर्ड एंड सोल्ड टू मीना। कैश का वर्ड है ही नहीं, गुड्स ऑफ 900 रुपीज सोल्ड टू मीना। ओके। फोर्थ वी हैव गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। देखो यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन, कैश इंक्रीज हुआ। फिफ्थ इज सैलरी पेड, ये भी कैश होगा क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है ना मेरे पास, मैं किसी को सैलरी देता हूँ तो मेरे से कैश डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। सिक्स इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 8,000 रुपीज। तो ये भी क्या हो रहा है, हम इंश्योरेंस के लिए पैसे पे कर रहे हैं 8,000 रुपए। ओके। नाउ सेवंथ है गुड्स ऑफ 200 रुपीज रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना, गुड्स ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपए की वर्थ की कुछ तो चीज है, जैसे कुछ वायर है, मेरे को वो फ्री में मिला है, 200 रुपए का उसकी एक्चुअल कॉस्ट उसकी 200 रुपए, पर मुझे फ्री में मिल गया, तो ये ना तो क्रेडिट हुई ना तो कैश हुई, ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नाइदर कैश नॉर क्रेडिट, नो पर्सन इज अफेक्टेड, इसमें कुछ हो नहीं रहा, ना तो किसी के बैंक से पैसे जा रहे हैं, किसी के पास कैश इंक्रीज हो रहा है, ना तो किसी के से कैश डिक्रीज हो रहा है, हमको ये फ्री सैंपल में मिला। एट है फर्नीचर ऑफ 5,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर। 5,000 रुपए का फर्नीचर है, यहाँ पे कोई भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है हमारे पास, समझे आप, कि 5,000 रुपए का फर्नीचर है, हमने सीजी फर्नीचर से खरीदा है, हम कैसे पैसे देंगे फॉर कैश, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमने यहाँ पे क्लासीफाई नहीं किया है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता कि फर्नीचर ऑफ 5,000 रुपीज परचेज फ्रॉम सीजी फर्नीचर फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन में हो जाता है, पर यहाँ पे कहीं पे भी कैश वर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कि हम इसके पैसे बाद में दे देंगे। नाइन्थ इज 3,000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। हाँ, 3,000 रुपये मैंने शाह एजेंसी को दे दिए कि एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो क्या हुआ, मेरे पास से कैश डिक्रीज हुआ, मैंने 3,000 रुपये उसको दिए, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। कमीशन रिसीव्ड 3,200 रुपीज, ये भी कैश ट्रांजेक्शन हुआ, हमारे पास कैश आ रहा है। ओके। गुड्स ऑफ 5,000 परचेस्ड फॉर कैश, देखो यहाँ पे कैश वर्ड का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आपको अगर कहाँ कहीं पे भी कैश का इन्वॉल्वमेंट दिख जाता है लिखा हुआ, तो आपको उसको बेझिझक उसको कैश ट्रांजेक्शन में के अंदर क्लासिफाई कर देना है। यहाँ पे देखो गुड्स ऑफ 5,000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, तो बैंक बैलेंस डिक्रीजेस। हमने पहले चैप्टर में नोट एक था नीचे, पता है कि अगर हम चेक से भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन के अंदर ही क्लासिफाई होता है। ट्वेल्थ इज गुड्स ऑफ 6,000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। ये क्या हुआ, 6,000 रुपए का कुछ भी गुड्स है सोल्ड किया और सेल किया हमने, और उसके पैसे हमको चेक के थ्रू मिले, तो ये भी कैश ट्रांजेक्शन हो गया। रेंट रिसीव्ड बाय चेक 500 रुपीज, देखो चेक कैश, आपको कहीं पे भी कैश या पैसे का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली दिखता हो तो वो हो जाता है, अगर आपको कहीं पे भी कैश का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली दिखता है तो वो हो जाता है कैश ट्रांजैक्शन, सिंपल। देन वी हैव टेलीफोन बिल ऑफ 700 पेड बाय चेक, चेक आ गया, चेक कैश, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्ड्स कैश चेक इक्वल टू कैश ट्रांजैक्शन।
ये सिंपल चीज हो गई कैश ट्रांजेक्शन समझने के लिए। लास्ट है अ चेक ऑफ 3000 इश्यूड टू लक्ष्मी बेन फॉर हर ड्यूज। ये भी कैश ट्रांजेक्शन हो गया, देखो चेक वर्ड का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ। फिर है दूसरा टॉपिक वाउचर। वाउचर क्या है? द पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज वाउचर। वाउचर इज अ पिलर ऑफ अकाउंटिंग। First step to write account is voucher. Voucher is a written document of business transaction. What is a voucher? Voucher is a written document of business transaction. What all business transactions has occurred? A voucher is a written document of the following. और ये वाउचर और ये सब क्या होता है ना, मैंने फर्स्ट चैप्टर जो था उसका शायद से लास्ट वीडियो है, इसके अंदर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मैं आपको वो वाला वीडियो यहाँ पे वापस पिन कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। लास्ट लास्ट में ही है, लास्ट की 5-6 मिनट है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ ये वाला पॉइंट, आप एक बार जाके वापस देख सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू। द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिटरमाइंड थ्रू वाउचर। परचेज ट्रांजैक्शन, सेल्स ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन, इनकम ट्रांजैक्शन, असेट ट्रांजैक्शन, पेएबल ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है। ये सब नेचर है ट्रांजैक्शन का। यहाँ पे लिखा था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिटरमाइंड थ्रू वाउचर। वाउचर के भी अलग अलग नेचर होते हैं ना, कि परचेज का ट्रांजैक्शन है या सेल्स का ट्रांजैक्शन है, बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर कोई असेट बाय करने के लिए ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सब हम क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। अ वाउचर इज यूज्ड एज रिटन एंड authentic evidence for which two parties transaction is made, where one party is voucher giver and another party is voucher receiver। सही बात है, ये रिटर्न और ऑथेंटिक एविडेंस है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये बात तो सही है, हम किसी को पैसे देंगे तो हम देने वाले हुए और जो पैसे ले रहा है वो लेने वाला हुआ, सेम वेर वन पार्टी इज वाउचर गिवर एंड अदर पार्टी इज वाउचर रिसीवर और एक्सेप्टर। The same voucher has different purpose for both the parties. After recognizing the nature of transaction, transactions are recorded in the books of business as per the applicable rules of accounting. In the wide meaning of voucher, the following can be included in vouchers. टाइप्स ऑफ वाउचर, मैं आपको बताया था कि अलग अलग टाइप्स के वाउचर होते हैं। जब मैंने वो डेफिनेशन रीड कर रहा था तब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है पहला, सेल्स बिल, वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स। वाउचर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने बताया, ये पिलर है वाउचर बिजनेस ट्रांजेक्शन का। इसका एक टाइप है कि सेल्स बिल, वाउचर ऑफ सेल्स ऑफ गुड। अगर कुछ सेल्स ऑफ गुड हुआ है उसका वाउचर, सेल्स बिल। परचेज बिल, अगर वाउचर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, अगर हमने कुछ गुड्स बाय किए हैं तो उसको क्लासिफाई करेंगे वाउचर्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। थर्ड इज क्रेडिट नोट, नोट्स फॉर सेल्स रिटर्न। दैट मीन्स in vouchers credit note we note sales return, and same for debit note, we note for purchase return. If any sales has written or purchase has written, we write in credit note and debit note. Counterfoil of check, evidence of cash withdrawn from bank. This type of voucher shows the evidence of cash withdrawn from the bank. We use it as evidence to make sure, yes, the cash was withdrawn from the bank. Pay in slip, voucher used to deposit cash in bank. When we go to deposit cash in bank, we fill pay in slip. Seventh is receipt issued, written certificate for amount received. Receipt issued is written certificate कि हाँ हमें अमाउंट रिसीव हो गया है, उसकी रिसिप्ट इश्यू होती है। और रिसिप्ट रिसीव्ड वेर रिटर्न सर्टिफिकेट और अमाउंट पे, हाँ हम ये रिसिप्ट रिसीव्ड ये वाला टाइप ऑफ वाउचर कब यूज करते हैं कि जब हमने किसी को अमाउंट पे कर दिया है, ये रिटर्न सर्टिफिकेट होता है। और एक्सपेंस बिल, सॉरी प्लीज नेग्लेक्ट द नॉइस एट द बैक। एक्सपेंस बिल, एविडेंस ऑफ एक्सपेंस इज पेड बाय चेक और कैश। ये एविडेंस है कि हाँ कि हमें एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं हमने उसको चेक या कैश से पे कर दिया है। Components of voucher. Generally, the following content is covered in voucher. Each component has significant from the viewpoint of accounting. ये कुछ कंपोनेंट्स है वाउचर में, कि वाउचर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो पहला तो है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द वाउचर। ये बहुत जरूरी है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द वाउचर इश्यूअर, कि किसके नाम का वाउचर इश्यू हुआ, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द वाउचर रिसीवर, ये भी जरूरी है।
कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के वक्त जो रिकॉर्ड हुआ है और वाउचर इश्यू हुआ है वो किसके नाम पे हुआ है। थर्ड इज डेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी शुड नो एट व्हाट डे द वाउचर वाज इश्यूड। when we are going to write the accounts, date is also very important. In first chapter I have told you when I was teaching you terminologies of accounting, right? There were many definitions. At that time I told you about what is the importance of date. Fourth is serial number of voucher. It is also important. We should know the serial number of the voucher. Fifth, amount in figures and words. Yes, जो अमाउंट है उसको फिगर्स और वर्ड में दोनों लिखना है। मतलब क्या हुआ, ऐसे भी लिखना है 10,000 रुपीज है और उसको ऐसे भी लिखना है 10,000 रुपीज, जैसे हम बचपन में पता है लिखते थे। सिग्नेचर ऑफ बिल प्रिपेयर, सिग्नेचर होना चाहिए जो बिल प्रिपेयर कर रहा है और सिग्नेचर उनका भी होना चाहिए जो बिल रिसीव कर रहा है। और एट्थ है टाइप ऑफ वाउचर। टाइप ऑफ वाउचर क्या है, यही जो मैंने आपको बता दिया है। ये सब वाउचर के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, वाउचर इश्यूअर, रिसीवर का डेट होनी चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए फिगर्स और वर्ड्स में, और बिल प्रिपेयर और रिसीवर दोनों की साइन होनी चाहिए, और कैसा टाइप का वाउचर है, या क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, सेल्स बिल है, परचेज बिल है, वो सब उसके अंदर क्लासीफाई होना चाहिए। So that is all for today, my friends. We are going to meet in the new video with new interesting topics related to accounting. So please stay connected. And thank you for spending a valuable time watching my video. Thank you.